Hello my dear students, welcome to all of you in my e-classes. In today's class, dear students, as you know that we are facing problem of COVID-19 virus. We are fighting against this virus. So due to that, we have to stay at home properly to avoid that community transmissions of this virus. So dear students, by staying at homes, we cannot avoid our study. So our study should not be hampered. So dear students, keeping the importance of study, we are just going to start online classes through my YouTube channels, through projectors, by using various techniques which are available in our school campus. So dear students, it has been already announced to you that the classes will start from 6th July, and we are ready for that, and you have to be ready for that, because mutual cooperation is very, very important in these aspects. So dear students, let us discuss about that science factors. As you know that our science has been divided into three sections: physics, chemistry and biology. We have to study separately three sections. So dear students, whatever syllabus we have completed so far during our online classes, which were organized during the March and April and May sessions. So dear students, within that period, we have completed one chapter from each sections. That is, from one chapter completely from physics sections, and one chapter from chemistry sections, and one chapter from biology sections. So we are now able to understand the questions and answers related to that. So dear students, I would like to inform that students who have missed their classes, who could not connect due to some technical fault, due to some technical problems, they were not added in that times, so they have missed the class so far. So dear students, you can communicate through this website, through this communication medium. We can interconnect again. So whatever studies we are lagging behind, that we can cover in it in this video. So dear students, as you know that if you talk about that physics, so we have completed one chapter, that is motion chapter हम फिजिक्स में अब तक कंप्लीट कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हमारा है मोशन, और इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग रनिंग चैप्टर 2 में हाफ कंप्लीटेड कर चुके हैं. जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, बिकॉज द चैप्टर 1 and 2 आर म्यूचुअल कोरिलेटेड. देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन चैप्टर 1 and 2. So it will not any problems, you can't face any problem in understanding chapter 2 if you have completed chapter 1. So chapter 1, the importance of chapter 1 is very, you have to concentrate on that. Chapter 1, that is motion, and chapter 2 is force and laws of motions, which are related to chapter 1. So dear students, first of all, you have to purchase a book from school office. You can visit school office. School office will remain open for your convenience. You can purchase the book immediately, as soon as possible. So you have to purchase the book. So dear students, I would like to inform the proper book schedules. So in physics, you have to buy the book that is written by Dr. S.K. Jain. Dr. S.K. Jain. Dr. S.K. Jain. Okay. Dr. S.K. Jain and दो राइटर हैं, डॉक्टर एस.के. जैन एंड डॉक्टर शैलेश कुमार जैन. डॉक्टर शैलेश कुमार जैन, ये दोनों राइटर आपके किसके हैं? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों बुक आपको ये लेनी है. फिजिक्स और केमिस्ट्री की कौन सी राइटर की? ये राइटर. ठीक है. आपको बायोलॉजी लेना है. बायोलॉजी इज रिटन बाय मधु बहाल की है. तो आपको बायोलॉजी इसका लेना है, मधु बहाल की. और ये पब्लिकेशंस तीनों की एक ही है, दैट इज विवा पब्लिकेशन.
इसी की बुक आपको परचेज करना है इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज if you have no any book then you can't keep on study properly. So dear students, as soon as possible you have to purchase the book, then join with us. So let us recall whatever you have studied so far in the terms physics. फिजिक्स में जो कुछ हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं. तो फिजिक्स में हमारा दो चीजें आती हैं, एक थ्योरी आती है थ्योरेटिकल सेक्शंस, एक आता है न्यूमेरिकल सेक्शंस. थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल. तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर दैट जो हम लोग पढ़ चुके होते हैं उसका सही से एप्लीकेशन ही हमारा न्यूमेरिकल में हेल्प करता है. तो न्यूमेरिकल में हेल्प करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लिखे हैं जो आपकी बुक में ही है फिजिक्स में, एसके जैन. यू हैव टू राइट द बुक, यू हैव टू परचेज द बुक इमीडिएटली. ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, a velocity of 20 km per hour is represented by an arrow of length 5 cm. What velocity is represented by an arrow of length 7.5 cm? वेलोसिटी क्या होता है, डेफिनेशन आपको पता ही है. वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, change in displacement in per unit time is called velocity. Velocity is referred as the change in displacement with respect to time, that is known as the velocity. तो velocity definition ठीक है. बस velocity और स्पीड में एक ही अंतर होता है कि velocity हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है. क्योंकि velocity में डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एंड स्पीड डजंट रिक्वायर डायरेक्शन, इट ओनली रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, ओके. तो अगर यहाँ कह रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी एक एरो लेंथ से रिप्रेजेंटेड की जाती है जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, तो फॉर 5 सेंटीमीटर के लिए कितना वेलोसिटी रिफर हो रही है, 20 किलोमीटर पर आवर. ये पूछ रहा है कि 7.5 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेलोसिटी होगी, तो हमको ये कैलकुलेट करना है. फॉर 5 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 20/5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है 7.5 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 7.5/5 किलोमीटर पर आवर. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट वन व्हाटएवर इज गोइंग ऑन. यहाँ से ये डेसिमल हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, ये कट गया. ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 15 2 जा 30. तो 30 किलोमीटर पर आवर आपकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट होगी किससे, अगर एरो की लेंथ हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर. सीधा सा मतलब है कि जब 5 सेंटीमीटर की लेंथ है तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर. 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो बाय यूजिंग मैथमेटिकल यूनिटरी मेथड्स यू कैन फाइंड आउट दिस अगेन. देखिए 5 सेंटीमीटर को मैंने लिख लिया है, 20 किलोमीटर पर आवर रिप्रेजेंट हो रही है. 1 सेंटीमीटर के लिए कितना डिवाइड कर देंगे. ठीक, फिर आपसे पूछ रहा है 7.5 सेंटीमीटर के लिए, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 7.5 इंटू 20/5. हमने डेसिमल हटाया, 0 बढ़ाया, काट दिया, ये आपका आ गया आंसर. ठीक है, ओके स्टूडेंट. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. An object is moving with a velocity of 5 meter per second in a particular direction. Calculate the distance traveled by it in 5 seconds. अब देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक विशेष डायरेक्शन में, विशेष दिशा की ओर मूव कर रहा है. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 5 सेंटीमीटर, 5 सेकेंड्स में. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है अगर पूछें कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये लो स्पीड आपका कितना दिया है, ये जो आपका पहला दिया है स्पीड वो दिया है
5 मीटर, ये एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसका कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में 5 मीटर चली जाती है, तो वो 5 सेकेंड में कितना जाएगी, तो सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर। अब देखिए 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रही है, तो 5 सेकेंड में कितना जाएगी। ये तो लॉजिक है कि 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब है 5 मीटर जाती है पर सेकेंड में, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा। तो इसका सीधा सा मल्टीप्लाई कर देंगे। यू नॉट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज दैट इज द रिटन ऑलरेडी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन 5 सेकेंड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज and a body is thrown up with a velocity of 20 meter per second. It retards uniformly at the rate of 10 meter per second square. Find the velocity of the body after 2 seconds. 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। देखिए कहने का मीन्स है कि जब बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं तो बॉडी को वेलोसिटी देनी पड़ती है, तो एक इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अब जब हम ऊपर से नीचे कोई चीज को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स, यू नॉट नीड टू गिव एनी वेलोसिटी। जैसे हमने इसको देखो यहाँ से छोड़ देंगे तो ये गिर जाएगी, तो हमने इसको वेलोसिटी नहीं दिया है। जैसे ये मार्कर है, मैंने ऐसे होल्ड किया है, अभी पकड़ा है, ठीक है। तो जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसमें हमने वेलोसिटी नहीं दिया। ड्यू टू ग्रेविटी द बॉडी फॉल्स बैक। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अगेंस्ट ग्रेविटी, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, हमारे बुक में है एक चैप्टर प्रॉपर्ली ग्रेविटेशन, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन जब हम लोग एक चीज ये देखें कि जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो हमको वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और वो वेलोसिटी हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी। उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक जो वेलोसिटी आप उसको देते हो। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो यू आपका कितना दिया है, देखिए ये दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, तो लिख लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, ये लिख लिया स्टूडेंट्स। ओके, इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब है इक्वल, ये यूनिफॉर्मली रिटार्ड्स हो रहा है, धीरे एक समान धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिटार्ड्स होकर के रुकेगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली रिटार्ड्स एट द एक्सेलरेशन दिया है ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन है तो निगेटिव होगा, इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख दिया। देखो एक्सेलरेशन है ये हमारा, ठीक है। ये पहचान गए तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये क्या इनिशियल वेलोसिटी है। पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। तो हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल दे दिए तो फाइनल 2 सेकंड के बाद कितना होगा। तो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशंस, तो v इक्वल टू u प्लस at, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v आपको निकालना ही है, u आपका दिया हुआ है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, ये रख दिया, प्लस a आपका दिया हुआ है तो -10, t कितना दिया 2 सेकेंड्स, तो 20 प्लस माइनस क्या हो जाए -20, 20 कट गए 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हुई 0। फाइनल वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है कि वो बॉडी अपने स्ट्रीम पोजीशन पे पहुंच गई है। जैसे आप देखोगे जब हम इसको नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हमने नीचे से ऊपर फेंका तो ये देखोगे जब ऊपर जाता है तो जहाँ इसका स्ट्रीम पॉइंट होता है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठीक है। अब आपको देखने के लिए नहीं रुकेगा, लेकिन जैसे मैंने इसको ऊपर प्रोजेक्ट कराया तो जहां से वो फॉल बैक करना शुरू करेगा, गिरना शुरू करेगा, वहां थोड़ी देर रुकता है। वहां से रुकने के बाद फिर वो फॉल बैक शुरू होता है, यानी यहाँ पे उसकी फिर वही यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों 0 हो जाएगी भाई, फाइनल वेलोसिटी वहां पे 0 क्यों होगी, क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी अब इनिशियल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि जब आपको पता है कि जब हम ऊपर से नीचे कोई चीज को गिराते हैं तो हमको वेलोसिटी नहीं देनी पड़ती है, यानी वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है 0। तो अब हम कह सकते हैं कि ये फाइनल पॉइंट जो इसका स्ट्रीम पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस,
वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होना श्योर है, और वहां पे वो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद बॉडी नीचे गिरना शुरू करेगी, तो नीचे फॉल बैक हो जाएगी बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो बॉडी फॉल्स बैक, स्टार्ट्स टू फॉलिंग डाउनवर्ड्स, तो ये आपका 0 आ गया स्टूडेंट्स। That is the concept is very very important. If you have understood all the concept regarding the motion, then you will not face any problem during the solution of numerical problems. If you are solving numerical problems, then you can't face any problems, these types of problems. Okay. Now let us recall the equation of motions, whatever you have studied so far. So dear students, there are 3 equation of motions which are given, आपके बुक में दिए गए हैं, और हम लोग उसको डिराइव भी कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। पहला वाला हमारा होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे जो 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस, इसको वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं हम लोग। ये इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, वेलोसिटी है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है। ऐसे हम लोग वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, इसके ऊपर एरो लगा देंगे तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में हमारा ये पहला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करने के 2 मेथड्स हैं। देयर आर 2 मेथड्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन योर बुक। जो आपके बुक में मेंशन है, आप उसको हम लोग डिराइव भी कर चुके हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। अप्रैल एंड मई सेशन में हम लोग उसको डिराइव कर चुके हैं। फिर से अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से डिराइव कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी इक्वेशन, इसमें टर्म क्या है देखिए, v जो है स्टैंड करता है फाइनल वेलोसिटी के लिए, इसके फाइनल वेलोसिटी के लिए, ठीक है। और आपका s क्या है, इसी में डिस्कस कर लेते हैं। u क्या है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल मतलब जो शुरू में स्टार्टिंग आप दे रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। t क्या है, t इज अ टाइम, ऑल ऑफ यू नो इट। t क्या है, टाइम है। दूसरे में बात करें, s क्या है, डिस्टेंस है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, t टाइम है। देखिए सब में वही चीज है, तो ये आपको बेसिक समझना जरूरी है। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपको फिजिक्स के टर्म्स, एक होता है वेपन्स, फिजिक्स का वेपन्स, ठीक है। जैसे हम लोग कभी कोई स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें, तो उसके पहले हमको बेसिक वो सारी चीजें जानना जरूरी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज हियर बाय रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव टू प्रिपेयर ए प्रॉपर नोट्स इन अ क्लास वर्क कॉपी, एंड आई होप ऑल ऑफ यू स्टूडेंट आर डूइंग दैट इन राइट फॉर्मेट। इफ यू हैव एनी query regarding the notes, then you can ask to me. I will explain through this how to prepare notes. Let us discuss, आप notes कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। नोट्स की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको थोड़ा डिस्कस कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट्स बनाते समय क्या करना है, वो पॉइंट्स कुछ ध्यान देना है। जो हमारे लेक्चर वीडियो में आपने देखा अब तक, उसको आप क्या करना है, उसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ बुक्स, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बुक पहले परचेज कर लेना है। विद द हेल्प ऑफ बुक्स आपको स्टार्टिंग में, जैसे मैंने मोशन पढ़ाया, तो पहले आप क्या करोगे, मोशन की राइट डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। रिलेटिव टर्म्स मोशन क्या होता है ये लिखोगे। मोशन के काइंड्स क्या है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। और आप पहली बात स्टार्टिंग जब आप नोट्स बनाओगे तो पहले मोशन के टर्म्स, वो कौन कौन से मोशन के टर्म्स हैं, देखिए। टर्म्स ऑफ मोशन, जैसे स्पीड हो गया डिफिनीशन, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस,
distance, displacement, retardation, ये हो गया। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रिटार्डेशन, इन सब की आपको डिफिनीशन लिख लेना है, जो हमारे वीडियो में आपको पहले से बता जा चुका है। ठीक है, और स्केलर वेक्टर्स, क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें आप मेंशन कर लोगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा टेक्स्ट बुक के अलावा आपको बताया गया है कि एनसीईआरटी बुक आपके पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस हम लोग जरूर अटेम्प्ट करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस एक्सप्लेनर, एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व करेंगे। उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसके बारे में आप डिस्कस करोगे कि एनसीईआरटी तीनों फॉर्मेट में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। उसकी एक नोट्स आप अलग से बनाओगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के लिए आपका एक अलग नोट्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड look all the questions given in your book and try to solve the questions like that. Thank you students for watching this video.